along with your names. So thank you for waiting. We were hoping, that most people could join before we began. And so without any further ado, let's deep dive right into the topic at hand. So before we do that, just a quick, introduction. My name is Megha Pai. I'm MSc in clinical psychology, and I'm training to become a licensed psychologist. And that's professionally, but by passion, I'm also a mindfulness and meditation coach. And we also have with us Dr. Neeraj Nagaich, who's the host of today's session. He is senior consultant of gastroenterology in Fortis Escorts, Jaipur. And he is also, by passion, Art of Living faculty teacher. He also, like me, teaches breathing techniques and meditation. And he's also a motivational speaker. And a little bird told me he's also a great singer. So we also have with us Dr. Praveen Gupta, who's a pediatrician in Manipal Hospital. And he's also a child lifestyle and parenting counselor. And of course, goes without saying, he is really, really somebody that, I look to for very simple yet constructive, scientific approach to life. So he makes science very, both Dr. Neeraj and Dr. Praveen, why I really appreciate what they do. They make scientific, explanations very, very normal and easily palatable and actionable. And that's the purpose of today's talk. So it's not going to be very scientific. We're going to have very, very, easy, simple steps and solutions. And also, this topic that we're discussing today, which is preventing stress and also, in extreme cases, suicide among students who are preparing for, exams, competitive exams. As we know, in India, that's a huge problem. We have a huge, population of students who are competing. Sometimes, the ratio is as bad as one student getting selected per 20,000 for some of the most prestigious institutes. So the stress and the pressure is tremendous. Life is precious, and our aim today is to just see how best we can create awareness around this situation among students, among parents, as doctors, as counselors, or as just good Samaritans, and tell people, how they can help themselves. So hopefully by today's session, we are going to have, some constructive conversations and some actionable steps. And of course, I've been told that there are a lot of doctors and psychiatrists in today's session. So I would request you all to identify yourselves in a chat or, in the chat so we can identify you at a later stage. And we would also like to make this as interactive as possible. We want to hear from all of you. Of course, Dr. Neeraj, Dr. Praveen, and myself, we have our own areas of interest and expertise, but we would like to hear from all of you on how we can tackle this situation, which is, very, very prevalent and very urgent to be acted upon. Acha, before I continue, is English okay with everyone? If there is anybody who would like this to also be in Hindi, please let me know. So we can mix and blend both languages. Anybody here who would want it only in Hindi? Okay, I'm going to take this silence as indication that everyone's good with English. So we're going to continue now. Over to Dr. Neeraj, who's going to take us through his point of view on this topic. Good morning, everyone. Thank you, Megha. And Megha is out from India, from Dubai. She's coordinating such a thing. Thank you so much at the
in such a short notice, and good morning all of you. And today's the purpose of planning today's meet is on a very sensitive topic, that is the stress students who are currently in various exams. The level of stress is so much so paramount. We are seeing them, and at multiple places we are hearing unpleasant news that they are not able to cope up the stress. So the main purpose was to what we can do as a social responsibility, how we can come and help them out. They want help at that very moment, and if it is provided, the life can be saved. And our statistics, last night only I was viewing a video by a very famous coaching person, and the figure he gave was every 42 minutes an Indian student is losing his life in India, and the responsibility lies on every parent, every coaching student, teacher, and as a citizen on us, how we can help them. So that is the context. And to start with that, I think we everyone in a certain phase of time, we ourselves has been a student. हम खुद ने हमने कभी ना कभी पढ़ाई करी है, और हमने डिफरेंट एग्जाम्स को ओवरकम करा है, या फिर हमारी फैमिली में, हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव में कोई स्टूडेंट है जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या प्राइमरी स्कूल के आगे एजुकेशन कर रहा है. तो उस स्टूडेंट को कैसे हम उसको एक सपोर्टेड एनवायरनमेंट दे सकते हैं ताकि वो अपने पोटेंशियल का यूज कर पाए, और स्ट्रेस जब उसके ऊपर आए तो उसको हैंडल कर पाए प्रॉपर वे में. ये कंटेक्स्ट है आज की टॉक का. There are a lot of senior persons. I can see Dr. Akhilesh Jain, very senior psychiatrist. He's there. Many more. So just rename yourself. And in the last, we want expert opinion from them and all, and what we can do to this. So we start with my perspective, my rather experience. Apart from being a student myself, a very long medical study I have done around 20 years, and I've gone through these all phases. So a practical experience from myself, how we can overcome these phases. That is one aspect. And second aspect is now, what are the things can be done at support level? So what are the right tactics, what we can do? सबसे जरूरी ये है एज अ फैमिली मेंबर, खासकर पेरेंट्स के लिए, कि जो उनके किड्स हैं या वार्ड्स हैं, उन पे वो किस एनवायरनमेंट को उनको दे रहे हैं, कितना उनको कम्युनिकेट करने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, कितना प्रेशर दे रहे हैं, कितना सपोर्ट दे रहे हैं. ये सारी चीजें बड़ी सटल हैं. और जब स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है तो किस तरह से हम उनको सपोर्ट ज्यादा दे सकते हैं. तो बहुत सारी चीजें हैं, बट मैंने एक छोटा सा एक निमोनिक आज ही बनाया जस्ट 30 मिनट्स पहले, ABCDEFG. ए से हमें अवेयरनेस इस चीज की जरूरी रखनी. अवेयरनेस के मतलब ये स्ट्रेस फेज आएगा तो ये अवेयरनेस स्टूडेंट को भी रखनी है, पेरेंट्स को भी रखनी है, उनके टीचर्स को भी रखनी है. अवेयरनेस कि पर्टिकुलर मेन टाइम पे जब उनका एग्जाम अप्रोच करेगा या मिड फेजेस होंगे तो अवेयरनेस के वो स्ट्रेस में आएगा. सो नंबर 1 ए इज अवेयरनेस. सेकेंड इज ऑलवेज अ बैलेंस. बैलेंस का मतलब ये है कि हमें मोटिवेट करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस या पुश देना है, बट उसको रिलैक्स करने के लिए थोड़ा पुल भी, कूल भी देना. तो वो बैलेंस हमें हमेशा बना के रखना है, स्टूडेंट को भी, पेरेंट्स को भी, और टीचर को भी. एंड C इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. C इज कम्युनिकेशन. हर वो पर्सन जो अपनी लाइफ लॉस करा है, अगर वो कम्युनिकेट कर देता अपनी फीलिंग्स को तो वो लाइफ सेव की जा सकती थी. तो स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है कि वो कम्युनिकेट करें अपनी फीलिंग्स को. पेरेंट्स के लिए मैसेज है वो कम्युनिकेट करें, बात करें कैसी फीलिंग हो रही है. कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नेक्स्ट इज द लेटर D. सो D इज फॉर डिविनिटी. बेसिकली डिवाइन मतलब एक पावर है जो हमारे संग चल रही है, जो हमें सपोर्ट करती है स्ट्रेस के आवर्स में, डिफिकल्टीज में. उस डिवाइन फीलिंग को भी स्टूडेंट्स हमेशा फील करे और कभी कभी उसको याद करे, या उस पे हल्का सा फेथ या सरेंडर भी करे डिवाइन को. ये भी हमें हेल्प करती है. E फॉर एनर्जी लेवल्स. हम हमेशा देखते हैं, एक्चुअली मैं भी हमेशा अपने लोगों से पूछता हूँ, यार एनर्जी लेवल लो फील हो रहा है. स्टूडेंट्स के संग भी यही होता है, एनर्जी लेवल लो फील होता है. तो उसको आइडेंटिफाई करें, कैसे बढ़ा सकते हैं एनर्जी लेवल को. अच्छी स्लीप लेके,
healthy nutritious food लेके, and definitely meditation. That is a calm relaxed mind. With the meditation एनर्जी लेवल्स कैन बी इंक्रीज. हमें आइडेंटिफाई करना है कब हमारा एनर्जी लेवल ड्रॉप हो रहा है, तो वहां पे हमें थोड़ा कूल रहना है, वहां पे एक्सर्शन लेवल थोड़ा कम करना है. एफ फॉर बी अ फाइटर. फेलियर के बिना कोई सक्सीड नहीं. हमने कितने सारी बुक्स पढ़ी हैं, कितने सारे टॉक्स देखे हैं, बिना फेलियर के सक्सेस कभी नहीं मिलती. जब मैं भी मैंने सुपर स्पेशलिटी लेवल के एग्जाम के लिए मैंने करा, तो मैंने 7 years लगातार फेलियर को फेस किया. 7 years लगातार गिव वे नहीं किया, और अल्टीमेटली 7th year में आई अचीव्ड द सुपर स्पेशलिटी. सो एवरी एग्जाम हैज इट्स फेलियर लिमिट्स. उसमें कुछ फेलियर होना, उससे डरना नहीं है हमें. लाइफ का कंटेक्स्ट एक बहुत बिगर कंटेक्स्ट है, उसमें एग्जाम या कैरियर एक छोटा सा रोल प्ले करता है, पूरी लाइफ नहीं है वो. एंड ये सारी चीजें जब समअप होगी तो हम अपना बेस्ट पोटेंशियल दे पाएंगे. तो ये चीजें हमें हमेशा ध्यान रखनी है. शॉर्ट निमोनिक से अवेयरनेस रखनी है, से हमें बैलेंस करके चलना है. स्ट्रेस लेवल को, रिलैक्सेशन लेवल को कम्युनिकेट करना ही है. और हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूंगा कि हमें बेसिकली हर पर्सन को देखना है कि उसके नियर बाय में, खासकर जो आपके स्टूडेंट्स हैं, देखना है कि कैसी उनकी बॉडी लैंग्वेज है. कहीं वो उनमें डिप्रेशन के फीचर्स तो नहीं आ रहे हैं, कहीं कम्युनिकेशन कम हो रहा है, वो उनमें लैक ऑफ प्लेजेंट फील करना. ये सारी चीजें जो साइंस होते हैं उनके डिटेल में जाना पॉसिबल नहीं है. तो ऑब्जर्व करना है कि कहीं ये तो नहीं हो रहा, तो कम्युनिकेट करना है. डेफिनेटली डिवाइन को फील करना है, अपने एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करना है, एंड एज अ फाइटर की स्पिरिट को लेके चलना है. और ये बिगर कंटेक्स्ट ऑफ लाइफ में एक एग्जाम या कैरियर बहुत मेजर रोल नहीं करता है, जस्ट स्मॉल पार्ट ऑफ द होल स्टोरी है. और ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हम देखे हैं कि जहां पे एक एग्जाम में फेल होने के बाद ज्यादा ऊपर पहुंच पाए, बजाय कि किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्ट होने में. तो आई थिंक ये मेरा पर्सपेक्टिव था. एंड with us we have Dr. Praveen Gupta. He is very close friend of mine, a pediatrician. और किसी भी पेड़ को छोटा सा, जब वो छोटा स्मॉल ट्री होके ग्रो होता है, तो पीडियाट्रिशियन ही उन बच्चों को ग्रो करके एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पेड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं जो किसी भी तूफान में हिलेगा नहीं. डॉक्टर प्रवीण. Unmute yourself. Yeah. You're not audible, Dr. Praveen. Unmute yourself. या Yes, audible. या एक बात पूछना चाहता हूँ मैं कि यहाँ जो सारे लोग आए हुए हैं, क्या चाहते हैं कि जिस तरह से अंधेरे से आए थे अंधेरे में चले जाएं, या फिर अपने दिमाग की विंडो ओपन करके जाएं? जो लोग चाहते हैं अपने दिमाग की विंडो ओपन करके जाएं, आई वुड लाइक टू से कि वो इसकी मीटिंग की भी विंडो ओपन कर लें. नहीं तो अंधेरे से अंधेरे में ही चले जाएंगे. क्योंकि इंटरेक्टिव सेशन रहेगा तो ही आप लोग मतलब सही मायने में अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाएंगे, बता पाएंगे क्या कैसा आपको फील होता है, क्या लगता है, तभी वो बेनिफिशियल होगा. चलिए ठीक है. अच्छा, स्ट्रेस क्यों आता है हमें जब हम इसके किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? स्ट्रेस कहाँ से हम लेना सीखें? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्ट्रेस लेना कहाँ से सीखें, और स्ट्रेस नॉर्मल चीज है कि नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है. तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हम किस तरह से डिजाइन्ड हैं, किस तरह से हम लोग बने हुए हैं. तो किस तरह से हम डिजाइन्ड हैं, ये देखने के लिए कि हमें देख जाना होगा थोड़ा पीछे कि बच्चे किस तरह से बने हुए होते हैं. बच्चों को देखें आप, बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हम खुशी छोड़ते जाते हैं और स्ट्रेसफुल होते जाते हैं. कुछ तो रीजन होगा.
और रीज़न मेन यही है कि स्ट्रेस से क्या होता है, हमारे अंदर 2 तरह के हार्मोन मेन होते हैं जो हमारे माइंड के स्ट्रेस या फिर फीलिंग्स वगैरह को एक्सप्लेन करते हैं। एक होते हैं हैप्पीनेस हार्मोन, जो कि बच्चों के अंदर बहुत हाई रहते हैं। दूसरे होते हैं स्ट्रेस हार्मोन, जो कि बच्चों के अंदर बहुत लो रहते हैं। और सच्चाई है कि ये बच्चों के अंदर हाई या लो नहीं रहते हैं, ये हमारे अंदर भी हाई और लो रहने चाहिए, सेम चीज़ होनी चाहिए। स्ट्रेस हार्मोन क्यों बनाए गए हैं, फिर भगवान ने क्यों बनाया है इन्हें, आप ये समझें। एक्चुअली कभी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है तो आपको एकदम से हैवी अलर्टनेस की ज़रूरत होती है, आप एकदम से अलर्ट हो जाते हैं, उस सिचुएशन को फाइट करते हैं, और इसी के लिए स्ट्रेस हार्मोन है। तो जैसे हम स्मोकिंग को अब्यूज़ करते हैं, वैसे स्ट्रेस को भी धीरे-धीरे अब्यूज़ करना सीख गए हैं। आप लोगों को ध्यान होगा, कभी जब पढ़ाई में मन नहीं लगता तो पेरेंट्स कहते हैं, पहले बहुत डराते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आपके साथ के बच्चे आगे निकल जाएँगे। या क बाद में धीरे-धीरे हम भी सीख गए कि जब पढ़ाई में मन नहीं लगता तो हमारे साथ के बच्चे आगे निकल जाएँगे, मैं सेलेक्ट नहीं हो पाऊँगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। इस तरह से स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, फिर पढ़ते हैं 1 आध दिन। जैसे ही स्ट्रेस कम होता है फिर रिलैक्स हो जाते हैं, फिर स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, फिर पढ़ते हैं। तो हमने अपनी खुद की हैबिट डाली है कि हम स्ट्रेस क्रिएट करें, और मैं कहता हूँ स्ट्रेस इज़ द बिगेस्ट एडिक्शन। किसी भी रीज़न के बिना अगर स्ट्रेस है हमारे अंदर तो वो नॉर्मल नहीं है, दैट इज़ लाइक एडिक्शन। तो एक सवाल मेन उठता है कि स्ट्रेस अगर हमारे अंदर नहीं होगा तो हम कोई चीज़ परफ़ॉर्म कैसे करेंगे? जब स्ट्रेस होता है तभी परफ़ॉर्म करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि स्ट्रेस लेने की हैबिट हम नहीं छोड़ना चाहते हैं, स्ट्रेस लेने की हैबिट हमारी सेम रहती है, और होता क्या है कि हम एक किसी टॉपिक से स्ट्रेस छोड़ते हैं, दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट कर देते हैं उसे। तो दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट हो जाता है स्ट्रेस, तो वो काम हो जाता है, ये जिससे स्ट्रेस छोड़ देते हैं तो वो काम कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो हमें लगता है कि स्ट्रेस नहीं लेंगे तो काम नहीं होगा। लेकिन धीरे-धीरे अगर हम स्ट्रेस करने की हैबिट को ही अगर छोड़ते हैं, तो फिर हम सिस्टमैटाइज़ हो जाते हैं। फिर हम काम की प्रायोरिटी लिस्ट अपने आप तैयार करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है? तो अ, अब दूसरी चीज़ जिससे मोटिवेट होके हम काम कर सकते हैं, दैट इज़ एंथुसियाज़्म। एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि अगर एक तरीका है कि हम अपने आप को काम के कुछ करने के लिए मोटिवेट करें, जैसे पढ़ाई के लिए या किसी एग्ज़ाम के लिए, कि अगर एग्ज़ाम फाइट नहीं किया तो फिर मैं पीछे रह जाऊँगा, मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा, मेरे पीयर ग्रुप के लोग क्या कहेंगे? एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आई एम ऑलरेडी सफिशिएंटली गुड पर्सन, कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ़ के साथ बहुत अच्छा कर लूँगा मैं। मुझे किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। पर चूँकि जिस एग्ज़ाम की तैयारी मैं कर रहा हूँ या जो एग्ज़ाम मैं देना चाहता हूँ, दैट अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी। और इसके लिए मैं अपने पूरे 1 साल की जितनी भी लोगों से मिलना-जुलना है, बाकी सारी एक्टिविटी कंप्रोमाइज़ कर रहा हूँ, तो पूरी ताकत के साथ इस एग्ज़ाम को दूँगा। रिज़ल्ट जो होगा देखा जाएगा, पर पूरी ताकत के साथ इस एग्ज़ाम को दूँगा। आप सोचें कि रिज़ल्ट की चिंता करते रहेंगे, पर ताकत नहीं लगा पाएँगे पूरी एग्ज़ाम में, तब ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट होगा, या फिर रिज़ल्ट की कोई चिंता नहीं करेंगे, पर पूरी ताकत लगाएँगे एग्ज़ाम में, तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट होगा। ठीक है ना? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें स्ट्रेस ओरिएंटेड स्टडी को शिफ्ट करके एंथुसियाज्म ओरिएंटेड स्टडी बनाना है, और सिर्फ ये स्टडी में नहीं करना, लाइफ के हर एस्पेक्ट में करना है, तभी हम अपनी हैप्पीनेस भी मेंटेन कर पाएंगे। अच्छा, प्रोग्रेसिव होना बहुत अच्छी बात है, बहुत जरूरी है, लेकिन दैट इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, योर हैप्पीनेस, योर ह्यूमैनिटी एंड योर लाइफ। तो अगर आपको बहुत हायर लेवल पे जाना है तो आप जो मीडियोकर एग्जाम्पल है वो ना देखें, कि जो बिल्कुल लगे पड़े हैं पूरा दिन सुबह से शाम तक, रात तक, स्ट्रेसफुल है, परेशान है, पर फिर भी लगे पड़े हैं। और आप बिल्कुल हायर लेवल पे देखें, आप टाटा को देखें, आप अंबानी को देखें, उन्हें देखें कितना रिलैक्स्ड और खुश हैं। और वो ऐसा नहीं कि आज की डेट में वो रिलैक्स्ड और खुश हैं, उन्होंने स्टार्ट और जर्नी पूरी इसी रिलैक्सेशन और खुशी के साथ की है। तो प्रोग्रेस करनी तो टाटा अंबानी की तरह करें, ठीक है ना? तो एक छोटी-सी स्टोरी मैं सुनाना चाहूँगा।
एक छोटी सी स्टडी में सुनाना चाहूँगा, स्टोरी सुनाना चाहूँगा मैं आपको कि एक आपने सोचा कि मैं कुछ शाही पनीर बनाता हूँ और शाही पनीर में आपने पता किया कि कैसे अच्छा बनता है, उसमें शाही पनीर मसाला डालना है, उसमें टोमेटो की ग्रेवी बनानी, उन्हीं से उसका टेस्ट आता है, पनीर तो वही होता है, ठीक है ना? अब आपने क्या किया कि खूब सारा शाही पनीर मसाला लाए, टोमेटो की ग्रेवी बनाई, उसमें शाही पनीर मसाला डाला, लेकिन तब तक पनीर की शॉप बंद हो गई और पनीर डालने को रह गया। आपने कहा कोई बात नहीं, टेस्ट तो इसी से आता है। आपने किसी को इनवाइट किया, उन्होंने देखा अरे ये क्या है? आपने कहा शाही पनीर। तो कहेंगे इसमें पनीर कहाँ है? तो जैसे शाही पनीर मसाले में से आपने शाही पनीर गायब कर दिया, वैसे ही हमने लाइफ में से लाइफ को गायब कर दिया। लाइफ को इम्प्रूव करने के सारे इंग्रेडिएंट हमने तैयार कर लिए, लेकिन लाइफ को हमने गायब कर दिया, ठीक है ना? तो पढ़ते वक़्त ऐसा नहीं कि आपको सारी चीज़ें साथ-साथ करनी, ठीक है, आप 1 साल के लिए डिवोटेडली सब कुछ छोड़ के अपने रिलेटिव्स को, अपने एन्जॉयमेंट को सब कुछ छोड़ के लग जाएँ। पर इस बात का पूरा ध्यान रखें कि ये एग्ज़ाम ही मेरी लाइफ़ नहीं है। इस एग्ज़ाम के अलावा बहुत कुछ है जो मेरी लाइफ़ में है, और चूँकि मैं इस बहुत कुछ को 1 साल के लिए छोड़ के बैठा हूँ, तो पूरी ताकत के साथ लग जाऊँ कि इस एग्ज़ाम को मुझे कैसे क्रैक करना है, ठीक है ना? तो स्ट्रेस ओरिएंटेड थिंक परफॉर्मेंस के बजाय एंथुसियाज़्म ओरिएंटेड परफॉर्मेंस करें, वही आई थिंक स्ट्रेस बचाएगा। दूसरी चीज़ है, स्पेशली फॉर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए भी, कि पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों से पूरा कम्युनिकेशन में रहें। वो अगर गलत भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर कम्युनिकेशन में रहें। उनकी कोई भी गलती, उनकी कोई भी अच्छाई उन बच्चों से ज़्यादा बड़ी नहीं है। आपके लिए सबसे बड़े वो बच्चे हैं। और जब आप लोग कम्युनिकेशन में रहेंगे, तो क्या होगा कि बच्चा जो भी उसके साथ प्रॉब्लम हो रही है, जो भी दिक्कत हो रही है, वो शेयर करेगा। अगर वो शेयर करेगा, आपको पता होगा उसकी परेशानी, तभी आप उसे रिज़ॉल्व कर पाएँगे। तो कम्युनिकेशन पेरेंट और बच्चों के बीच में इस समय बहुत इम्पोर्टेंट है। और कोई भी नेगेटिव फीलिंग अगर बच्चों को आती है, इवन स्टार्ट भी होती है, तो उसे नॉर्मल नहीं मानना है, आपको हेल्प लेना है। आपको अगर पेरेंट्स से हेल्प नहीं मिल पा रही है किसी वजह से, तो आप देखें कि कौन मेरी हेल्प कर सकता है, या किसी काउंसलर से, किसी से भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो कभी भी उसे नेग्लेक्ट नहीं करना है इनिशियल लेवल ऑफ स्ट्रेस को। उसके लिए आपको लगातार हेल्प सीक करनी है, और एक अपनी हैप्पी और अ, अच्छे माइंडसेट को मेंटेन करते हुए फिर पूरी ताकत से स्टडीज पे लग जाना है। थैंक्स अ लॉट। मेघा जी, आप दोबारा सेशन को लीड करें। थैंक यू वेरी मच। हेलो, डॉक्टर नीरज, आर यू देयर? मेघा जी, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या? डॉक्टर नीरज, हेल्प करें उनको अनम्यूट करने में। Am I audible now? या Okay, wonderful. Thank you. Thank you so much, Dr. Neeraj and Dr. Praveen. That was so wonderfully and very, simply, but also very profoundly put. आप दोनों ने जो भी शेयर किया है बहुत ही सुंदर तरीके से, ABC के जरिए या किसी स्टोरी के जरिए या अंबानी के के एग्जाम्पल के जरिए बहुत ही सुंदर तरीके से हमें सिखाया है. So I can't think of a lot more to add, but just to reiterate some of the takeaways that I got from both of you. One being that understanding कि life में उतार चढ़ाव आते रहते हैं. राइट, वेरी इंपॉर्टेंट कि जब पेरेंट्स भी अपने बच्चों को प्रिपेयर करते हैं लाइफ के लिए, व्हेन दे आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ देयर शेल, देयर cocoon of the house and go out into the world, it's very important that we normalize failure. प्रॉब्लम क्या होता है, हम
if we look at, हम क्यों stress में आ जाते हैं, या बहुत ही extreme step भी, जब हम बहुत ज़्यादा stress हो तो वो depression बन सकता है, anxiety बन सकता है. And in extreme cases, as we know, Dr. Neeraj spoke about it, kids even think it's worth taking their life, right? Why does that happen? Because there is fear of failure somewhere. So it's very important to normalize failure, as I feel as a parent, to say ki it's okay, trying is important, result is not so important. That is also has its own place, but it's not more important than your own life, right? So, okay, we have somebody saying this course is good, but not practical for example. You said don't stress much about result, but what is the method for this? Very, very good question, Mr. Sravan. Very, very important too, right? So there's no, this is not a sermon. So we want to share with you everything that we can, so that you have tools at the end of this session. Okay, so as a training psychologist, I can share some of those as well. And of course, Dr. Neeraj and Praveen did share some, and they will re-establish some of those points. So, Meghaji, so how, Dr. sorry? Akhilesh Jain with us. Meghaji, we have Dr. Akhilesh Jain. He's a, see, I am not able to see him, whether you can just add on screen. Uh, Dr. Akhilesh Jain, Yes, I see him. He's here. spotlight him if we can put his video on. I'm unable to spotlight because you have the hosting rights, but you can. I'm trying to do. So we also want to listen from him. I'm Dr. Akhilesh sir, are you able to put on your video or on audio? Yeah. I think due to some network issue, we are just trying to connect him. Yes. Okay, yes. Yes, we can see you, sir. Dr. Christian, sir. You unmute. You would allow him to unmute. Maybe you can ask him to unmute. Yeah, I've allowed him to. Maybe he's joining again. And he's has done a lot of phenomenal research work, practical work, lot of publications coming from him on this issue. He has a lot to tell with us, and just we are waiting for him. Maybe he'll So again. maybe in the meantime, I can share what I was about to, and then Dr. Akhilesh can take over once he's here. So, going back to the definition of stress, stress is, one way to look at it would be when you have a lot to do and not enough energy to do it with, right? So, so raising your energy levels will help you to deal with stress. And that's exactly what Dr. Neeraj and Dr. Praveen were talking about, raising your energy levels, right? So that you can do in many ways. That is to make sure that your sleep is good, right? A lot of us burn the midnight oil. While I understand the value of, studying late in the night when there are no disturbances, but actually what you're doing to your nervous system is wreaking a lot of havoc. And that in the long run is going to steal away, from you the ability to to recover and recoup. So it's very important that you sleep enough every day at the right time. And the right time would be, your biorhythm needs to be, in such a way that you're sleeping between 12 and 2 at least. 10 and 2 is what they say, but 12 and 2, so that your system gets to rest and digest and recover, right? So very important to get your sleep in place. It's important to also look at your food, eating healthy, nutritious food is very important. So there's a lot of research that has been done. There is a huge connection between our gut and our brain. Right now, they're finding that as many neurons we have in the brain, we also have in the gut. Right. So it's sometimes, when we are eating, when we are studying, we eat a lot of junk, just stress eating, stress food. And what happens is, our gut system, our gut health then starts to deteriorate over time. And that really
prevents us from again recovering. And like I said, gut is now called the second brain of the body. And that is because there are a lot of these neurons and over here, and the gut bacteria plays a huge role in our mental health. There's a huge groundbreaking research that is happening right now. There is a big one that has been happening for a few years in New Zealand, where psychologists and therapists and doctors, even psychiatrists are involved, if I'm not if I can remember correctly, and they are treating depression and mood disorders and anxiety with the help of food. So please, I request you all to really go deep into the science of food as well. What is nourishing for you? Are you getting all the nutritions? Are you getting enough carbs, vitamins, proteins, and the good quality ones? Right? Very, very important. And of course, like we said, breathing exercises are very, very important, because now when you look at psychology, it's all moving towards breathing and meditation, mindfulness, as they are calling it. And there's a big reason why, because we might think, "Are ye to purana ho lagta hai, it's deeply spiritual," all of that. Leaving all of that aside, yes, the roots of meditation and mindfulness are in the yogic Eastern philosophies, but now more and more Western psychologists are making it part of treatment for depression, treatment for anxiety. And there's a reason why, right? So do breathing exercises to release stress, right? We don't realize it, but our stress, our emotions and our breath are deeply connected. When we experience emotions, we go through certain breathing patterns, right? Or when you're tired, what do? Have you done that? Are bahut thak gaya yaar. Right? Naturally, that mechanism exists. So there is some relief that you're getting out of that deep breath. And oxygen is nothing but energy, right? Oxygen is life. You can live without eating, water, sleeping for a few days, but you can't live without oxygen even for 2 minutes. So the more oxygen you get into your system, so exercises can help you, running can help you to increase your oxygen intake, swimming, doing physical activity, or breathing of exercises like pranayama. Definitely I would recommend increasing your lung capacity and breathing the right way is very, very helpful in changing your emotions, right? And meditation, meditative state of mind, basically what that helps you understand is look at life from a bigger perspective. Right, that's what Dr. Neeraj and Dr. Prameen were talking about. Knowing that, yeah, theek hai, it's not the end of the world. I may not have done well, but that acceptance of whatever is, and then having that faith that maybe something better is in store. Right, like there is a favorite saying of mine that if it's not a happy ending, then it's probably not the end. It's probably the interval. I mean, that's just a cliche saying, but what I'm trying to say is that have that positive attitude that, yeah, okay, this didn't work out, maybe something better can happen. So otherwise, what else can you do? निराश होके बैठ जाओगे, उसमें क्या मिल रहा है? Right? So you might as well keep a positive uptake. Okay, give yourself one day to, to maybe mourn for your bad marks or whatever, but then move on and try again and try. Like Dr. Neeraj said, 7 years, and here he is and he's rocking it, right? So persistence is very important, and having that, patience. Ki theek hai, when you do well, you enjoy, but not losing, Can I your come in? sense of self-worth when you are depressed, right? When things aren't going your way. Yes. Now over to Dr. Akhilesh. I was just filling in till you were back with us again. Welcome, sir. Good afternoon. So Dr. Akhilesh is a senior psychiatrist from Jaipur, has been my colleague, and he has done a lot of research work, a lot of practical work, has a great experience in dealing all type of these cases. Sir, we like to hear from you. Welcome. Yeah, thank you, Neeraj. It's indeed been an honor that I've been attending this for the first time, and I could see that here is my task, being a gastroenterologist and a pediatrician as well, that you have spoken so well about the issue.
So I don't think much left for me to talk about. However, there are certain points which I would like to mention precisely, because when we talk about the depression, suicide, and the stress level in the students, especially, then we need to understand few of the important practical aspects which we need to be very much, concerned about. And I'll just give you a brief account of that. The most important thing what our pediatrician friend Dr. Praveen was talking about is stress. Stress is essential. Let me tell you, stress is needed. If you need to progress, you ought to have stress in your life. Unless you are not stressed for something, you won't be motivated to take these steps. Okay. So stress is always required. It is required for the functioning, effective functioning. You might have seen that while we were students, and if the students who have joined this platform would definitely acknowledge that as long as we have been studying, we don't feel much stressed. But the moment we find that on notice board the examination notice has been fixed, all of a sudden we become, too alert, apt, active. We start planning, that now exam dates have declared, so we should act accordingly. So this is why stress is required. Dr. Praveen has rightly said, but the stress level should be at an optimal level, what we call is a U stress. Once it goes beyond that, I mean, when the stress become more demanding than the resources, I mean, if you find that you're not able, holding that stress, it becomes distress. And once it becomes distress, it can bring out, different habits, like you feel nervous, you feel sad, you feel, hopeless. So this is one of the important things. Second thing is when we talk about the issue of feeling negativity, ending, even thinking of ending one's life. Why it happens so? Because most of the time you'll definitely acknowledge that in present era, it's a competitive era. You ought to perform as much as you can, isn't it? I mean, people expect from you, parents expect from you, you yourself expect from yourself. So you need to perform. So that concept of performing always remains at the subconscious mind, and that makes you feel more stressed. And most of the time, students, they are living away from their family in coaching. They are attending coaching, so they are staying away from their parents, their siblings. So what happens whenever they are stressed? They actually do not share that. It was very rightly said by Dr. Neeraj that communication is the core. It is the fundamental. I mean, if you ask me that, what is the most important thing which we can do to rescue ourselves, to rescue our peace, that is communication. So what happens actually? Sometimes students take it as a weakness that if I keep talking to my parents all the time of the problems, they would take it otherwise. It's not like that. You should always share your emotions. You should always speak up whatever you feel like to your friends, your colleagues, your parents, to your teachers, everyone. If you share a problem, you vent out your emotions, it helps not only you to feel relaxed, but at the same time, you also have an opportunity to seek the advice, to seek the help. So that is most important thing. Another important, like my friend counselor said, you ought to give some time to the leisure, meditation, some yogic kriya. That is very helpful. That not only releases your stress, but that rejuvenates the body to fight back. It is very important. Never take it as a weakness. I mean, if I am feeling helpless, I am feeling depressed, I am feeling not comfortable with what my studies are at, or at the level of. So that doesn't mean that I'll be deemed as a failure. Never take it like this. Many people have they tend to feel these problems, and they, once you share it, you get the solution. So never hesitate in sharing the problem. Then you should always remain in touch with your teachers. There should be groups wherein you can share your problems, and there should be a mentor-mentee kind of program wherein you have someone who is close confide to you. You can share your problems with them. And there are certain symptoms, though Neeraj didn't tell you, that if you feel helpless, you feel that things are not going well with you, you see no way out of the problem, then you should tell your friends. It is very important, because they're the step. Never hesitate. And it is also an advice to the friends as well, that once you find someone in that trouble, don't be judgmental.
try to pay heed to them, listen to them properly, help them, bring it to the notice of their parents, their siblings, everyone. So the most important thing is communication. Obviously, the rest of the things have been told by my colleagues: diet, sleep, meditation, everything is equally important. And very important is that exams are just a part of life. It is not life, like what Dr. Neeraj just said. So it's a process. It will keep ongoing. Okay, you will meet many challenges. The beauty is that how you handle it. It's not whether you have succeeded it or not. How beautifully you handled it, that is more important. Your endeavors, your efforts. So never fall short in your efforts. Don't look for the result. It will definitely come beautiful someday. The only thing is always communicate, keep in touch with friends, family, caregivers, everyone. Make a good habit of adequate sleep, proper food. I don't think any challenge can, withhold you from your progress. Thank you. Thank you so much, sir. And in future, we would like to hear more and more from you. You are the expert, today's expert. We actually keep doing these kind of activities. We publish articles too as well for the students, teachers, everyone. And most important thing is we should take into account the concern of the students. If students are connected over here, it is better that they should speak up. They will be the right person to actually express what they feel about. Very, very nice to hear. And Megha ji, now we can open for questions. If the audiences want some question, we can answer. So, Sure. So you can put So your please hand unmute up, or you everybody. can type Please in unmute the, everybody and let them talk, I think. yes. now Please unmute everybody and let everyone them can unmute talk and themselves express now. their Loud. feelings. And if some more expert, some psychiatrist or some person is there, he can, we like to listen from, maybe we are not able to recognize them. So if someone wants to share as an expert, yeah, please. I will try to add you. Please, you may raise your hand, or you may just unmute yourself and speak. Just raise your hand. Spotlight. Realme Narzo 10. Are you trying to speak to us, or are you just on unmute? I think Mr. Devendra wants to speak something. Yes. आप सभी को मेरा नमस्कार. Yes. सुन पा रहे हैं सर? Yes, please go ahead. जी, मैं पिछले कई सालों से कंपटीशन क्लासेस के बच्चों को पढ़ाता हूं, तो मेरा एक एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करना चाहूंगा. अभी राजस्थान में 45 इयर्स तक के लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर सकते हैं. एक सिस्टम बना हुआ है, तो उस पर हमारा एक अनुभव है वो बताना चाहूंगा. कोई भी जो स्टूडेंट है उसको एक तो डायरी लिखने की आदत डालनी चाहिए, और डायरी का जो मेंटेनेंस है वो हर रोज होना चाहिए. रात को सोने से पहले उसने क्या क्या टास्क कंप्लीट करी, किसी ने उसको क्या ताना मारा, दोस्तों में से किसी ने क्या प्रोग्रेस करी, ये सब अगर वो लेखा जोखा लिख करके रात को डायरी में बंद करके सो जाता है, तो उसके दिमाग से बहुत सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है. ऐसा मैंने बड़ी क्लास के स्टूडेंट्स के साथ होते हुए देखा है. तो डायरी जो है ना, वो एक जैसे अपन नदी पे डैम बना देते हैं तो ऊर्जा को स्टोर कर लेते हैं, उसी तरह से डायरी जो है वो किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत शानदार चीज हो सकती है. इसका हम भी यूज कर सकते हैं, और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स में इस विधा को सफल होते हुए भी देखा हुआ है. तो डायरी लिखना है वो बहुत जरूरी है. मान लीजिए कोई यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, प्री के अंदर वो फेल हो गया, लोगों ने उसको ताने मारे, परिवार के लोगों का विश्वास उठ गया, तो अगर वो डायरी में इतना लिख देगा कि आई कैन डू इट, नीचे साइन कर देगा, डेट डाल देगा, टाइम लिख देगा, तो उससे उसके दिमाग में एक पॉजिटिव मैसेज मिलना शुरू हो जाता है. तो ऐसी चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सेकंड, मैंने ये देखा है कि जब कोई बच्चा कंपटीशन की तैयारी शुरू करने लग जाता है तो वो सोसाइटी से कट जाता है.
कमरा बंद करना, कोचिंग जाना, फिर आ जाना, ये बहुत गलत है। आप उसको सोशल बनाइए। हफ्ते में एक दिन उसका कम से कम दोस्तों के साथ बीतना ही चाहिए। और दोस्त अगर बचपन के हों जो, तो बहुत स्ट्रेस दूर करने में मदद करते हैं, क्योंकि जब वो मिलते हैं तो बचपन की यादें ताजा करते हैं, यार तू उस समय कैसा था, अब तेरे में क्या चेंज आ गया है। तो हर बंदा कहीं ना कहीं प्रोग्रेस ही करता है। तो ये चीजें काफी फायदेमंद है। दूसरा, मैं एक रिसेंट एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। अभी मेरा एक स्टूडेंट है, वो यूपीएससी इंटरव्यू में कुछ नंबर से रह गया, बहुत स्ट्रेस में था, कमरा बंद करके रहता था। मैंने उसको कहा तू थोड़ा घुमा फिरा कर। तो एक पार्क के अंदर गया तो वहां उसे एक बंदा मिला जो रो रहा था बेंच पर बैठ करके। उसने पूछा अभी क्या बात है? बोले मैं 12th में तीसरी बार फेल हो गया और मैं इससे आगे पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो उसने मुझे आकर बताया कि सर मैं पीएचडी कर रहा हूँ और एक बंदे से 12th नहीं हो रही है, मेरे से भी ज्यादा दुखी लोग इस दुनिया में हैं। तो पॉइंट क्या है, हम जितना सोशल होंगे, हमसे बेहतर लोग भी हमें मिलेंगे और हमसे कम बेहतर स्थिति वाले लोग भी हमें मिलेंगे, जो हमें मोटिवेट करेंगे कि हम इससे बेटर हैं। इससे क्या होगा, हमें एक बूस्ट मिलता है लाइफ के अंदर। तीसरी जो चीज है वो है रेगुलर एक्सरसाइज करना। अगर आधा घंटा भी कोई रेगुलर एक्सरसाइज करता है, जैसे डॉक्टर प्रवीण जी ने कहा, नीरज जी ने बताया, तो उससे क्या होता है, उसको काफी फायदा मिलता है। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि अगर स्पोर्ट्स के साथ में जुड़े, तो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो आप में कंपटीशन की भावना को लगातार जिंदा रखते हैं। कभी आप हारते हैं, कभी जीतते हैं, और कंपटीशंस में ऐसा ही होता है। तो ये 4-5 चीजें हैं जो स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और डायरी को जो है, मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पाया है कि अगर कोई बंदा रेगुलर डायरी ईमानदारी से मेंटेन करता है, वो ईमानदारी इसमें बहुत जरूरी है। और जो डायरी है वो छुपी होनी चाहिए। कई बार क्या करते हैं, स्टूडेंट ले आते हैं, मेरे जीवन में बहुत दुख है, पता नहीं भगवान क्या चाहता है। कल परसों की बात है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार तेरे पास खुद का घर है, दोनों टाइम खाना मिल रहा है, माँ बाप हैं, भाई बहन है, अब क्या स्ट्रेस है? अब कोर्स है वो तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो ईमानदारी और प्राइवेसी डायरी में बहुत जरूरी चीजें हैं। ये बातें मैं कहना चाहता Thank you so much, Devenji. Really helpful information. Yeah, Megha, please continue. हाँ, डेफिनेटली, थैंक यू देवेंद्र जी। आप जैसे होता है ना, you're on the field, हम तो जी। यहाँ बैठकर कह रहे हैं, पर आप इन स्टूडेंट्स के साथ डे टू डे आप इंटरेक्ट करते हैं, तो आपका फीडबैक बहुत ही वैल्यूएबल है। एंड आई डेफिनेटली अग्री, साइकोलॉजी में भी राइटिंग का बहुत महत्व दिया जा रहा है। इट्स बीइंग मेड पार्ट ऑफ थेरेपी एज वेल, थेरेप्यूटिक प्रोसेस, कि आप अभिव्यक्त, कुछ लोगों को बोलने में जी। प्रॉब्लम होती है, वो अभिव्यक्त नहीं कर पाते, या स्पेशली लड़के जो होते हैं, राइट, सैडली हमारा ऐसा सिस्टम बन गया है कि उनको बात करने में बहुत झिझक फील होती है। अपने, अरे मैं कैसे कह दूं मैं डिप्रेस्ड हूँ, मेरे को जैसे होता है स्ट्रॉन्ग दिखना है, all those things, right? So writing is very therapeutic. So please, everybody, I request you all to try it. Even if you don't have stress, just write. And you will see that it really transforms the way you look at life, and it will give you so much creativity. स्ट्रेस तो कम करेगा ही, पर आपको क्रिएटिव भी बनाएगा और आपको एक नई दिशा भी दे सकता है। सो डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। और कोई है जिनका कोई ऐसा वैल्यूएबल फीडबैक हो देवेंद्र जी की तरह, कोई डॉक्टर या कोच, पेरेंट भी, और अ स्टूडेंट? वी वुड लाइक टू हियर मे बी फ्रॉम सम स्टूडेंट्स what's happening with you all. शायद you want to share, or you have a question, you have a situation that you don't know how to tackle. Now would be your time to ask. I Any think दिलीप जी ने ऑन किया है अपना स्क्रीन, सो आप मैम कुछ कहना चाहते? मैं तो योगाचार्य हूँ, तो योग की के बारे में थोड़ा सा बता सकता हूँ। राजस्थान स्वास्थ्य योग परिषद की तरफ से मैं हूँ, NDDY मैंने किया हुआ है, नेचुरोपैथी में डिप्लोमा होता है, एक्यूप्रेशर का भी थोड़ा बहुत ज्ञाता हूँ। तो मेरे हिसाब से प्राणायाम यदि करें तो डिप्रेशन में नहीं जा सकता, स्ट्रेस लेवल को कम कर सकता है। प्राणायाम में भी भस्त्रिका प्राणायाम जैसे दीर्घ श्वास प्रश्वास की क्रियाएं जो होती हैं वो अडॉप्ट करें, अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी करें, उद्गीत करें, तो इनमें से स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस किया जा सकता है। Absolutely.
बिल्कुल सही कहा आपने दिलीप जी। हम खुद भी प्रवीण जी, डॉक्टर नीरज, मैं, हम आर्ट ऑफ लिविंग में भस्त्रिका और प्राणायाम के बहुत सारे ऐसे ऑप्शन सिखाते हैं लोगों को, एक्सरसाइजेस, तो 100%. And So Devendra ji, maybe that's something you can also explore. And if people like you, maybe make mindfulness breathing exercises part of your coaching. क्योंकि हमें क्या है ना, सब पढ़ना सिखाते हैं, साइंस सिखाते हैं, मैथ सिखाते हैं, राइट, फिजिक्स केमिस्ट्री सिखा देते हैं, पर अपने मन से कैसे डील किया जाए ये नहीं सिखाते, राइट। पर अगर ये आ जाए तो एनी प्रॉब्लम विल बिकम वेरी सरमाउंटेबल। जैसे आपने कहा कि वो नजरिया, विशाल दृष्टिकोण की, मुझसे आगे भी लोग हैं, पीछे भी लोग हैं, क्या हो गया, राइट। तो जी। अगर वो आप एक्सप्लोर करिए, अगर आप ट्रायल करते हैं, क्या पता आप कितने लोगों का, कितने बच्चों को आप भला कर देंगे, एंड कितनी दुआएं आपको भी मिलेंगी। सो जस्ट अ थॉट। ओके, जी मैम, थैंक यू। कुछ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की हाँ बोलिए आप बोलिए, सॉरी। जी, मैंने अपनी कोचिंग क्लासेस में हफ्ते में एक दिन सैटरडे को हास्यासन शुरू करवाया था, जिसमें हमारे चूरू में योगाचार्य जी थे, तो वो आकर के 1 घंटा शनिवार को बच्चों को हंसाते थे। बेसिकली क्या होता है, क्लास में 200-250 लोग बैठे हैं, एक भी हंसना शुरू कर दे, बाकी हंसते हैं। फिर वो बताते थे ये हंसी तो रावण जैसी है, ये सुरफनखा जैसी है, ये बूढ़े आदमी जैसी है, बच्चे जैसी है, तो बंदे हंसना शुरू कर देते हैं। और संडे ऑफ होता ही है, तो ऐसा हमने करवाया और अपनी कोचिंग से राजस्थान के टॉपर्स भी निकले हैं। और मैं एक चीज का गर्व महसूस करता हूँ, सिलेक्शन रिजल्ट्स अपनी जगह है, कि मैंने अभी तक कम से कम 10 लोगों को स्टेज से बाहर निकाला है जो सुसाइड करने के एकदम करीब पहुंच चुके थे, जिनमें से 7 गर्ल्स थी। और किस एज में, थैंक यू, 12th पास करने के बाद में नीट क्लियर नहीं हो पाया, वो यूपीएससी में रह गया। उनको सिर्फ इतना ही बताया कि आप एक काम करो, सुबह का उगता हुआ सूरज और ढलता हुआ सूरज देखना शुरू करो। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मैंने इस पर एक बुक भी लिखी है, कामयाबी द सक्सेस करके। उसमें 40 सूत्र हैं जो हमने आजमाए हुए हैं। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। से एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, ठीक है, तो पढ़ते पढ़ते क्या होता है, बहुत सारे स्ट्रेस दिमाग में आते हैं, भाई ये मेरे समझ में नहीं आ रही चीजें, मेरा दोस्त आगे निकल गया, पीयर प्रेशर एक बड़ी चीज है, ठीक है, एग्जाम की डेट आ गई है, अब राजस्थान में पेपर आउट हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आपको, आरपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हम किसी की बुराई नहीं करें, एक छोटी सी बात है, उसके पेपर आउट हो गए। अब कोई बंदा उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करके आया है, उसे लगता है पिछली कट ऑफ से मेरे ज्यादा हैं, पेपर आउट हो गया और पेपर कैंसिल हो गया, अब उसको फिर तैयारी करनी पड़ेगी। वो अपने शहर से दूर यहाँ जयपुर में रह रहा है, खर्चा लगता है, मतलब बहुत बड़ा स्ट्रेस है। एक हमने तरीका अपनाया जो साइकोलॉजी में है, एक होता है बॉक्स टेक्निक। उसमें ट्रांसपेरेंट डिब्बा आपको अपनी टेबल पे रखना होता है। तो जैसे ही कोई स्ट्रेस आपके दिमाग में आया, जैसे किराया देना है, अभी जयपुर में किराया बहुत बढ़ गया है, किराया देना है 15 दिन बाद में, क्या करना है, और पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रहा है, आप पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, तो एक छोटी पर्ची लेकर उस पर लिखना है कि मुझे किराया देना है 7 जुलाई को, और अभी चल रहा है जून, तो मैं 1 जुलाई के बाद सोचना शुरू करूंगा, अभी तो मेरा मुझे पढ़ना है। उसमें साइन कर दिया, टाइम डेट लगा के उस बॉक्स में रख देगा, तो वो जो थॉट है वो वहीं निकल जाएगा। फिर अगर वो थॉट आ गया तो दोबारा आप पर्ची लिख करके उसमें डाल दीजिए। दिमाग में क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड इसको रीड करेगा कि जो नेगेटिव विचार या जो टेंशन है वो उस बॉक्स में है। जैसे वो बॉक्स भर जाए, उन पर्चियों को कहीं जाकर के आप फेंक आइए। कैपिटल आना चाहिए था ना, तो आप फिर शुरू कर दीजिए। तो ये बॉक्स टेक्निक जो है ना, ये बहुत ही कारगर रही है, ये मैंने देखा है। ऐसे मैंने 40 फॉर्मूले अपनी बुक में लिखे हैं और 2 साल में लगभग 5000 उसकी कॉपी निकली हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो राजस्थान गवर्नमेंट के सिलेबस में भी लागू हो। रिव्यू चल रहा है उस बुक के ऊपर। तो ये एक प्रकार की सोशल सर्विस है, मुझे लगता है अगर ऐसा हो गया तो मतलब काफी मददगार साबित रही वो चीज। वेरी जी, गुड। बिल्कुल, वेरी वेरी गुड, अमेजिंग। बहुत बढ़िया। देवेंद्र जी बहुत शानदार, जैसे किसी ने लिखा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड मोर पावर टू यू टू ब्रिंग चेंज। एंड आज का ये सेशन भी बस इसीलिए था
If there is anybody else who has any questions, very quickly you can ask. If not, then we will conclude today's session. आई थिंक कोई स्टूडेंट और पेरेंट्स को भी आगे आना चाहिए, उन्हीं के लिए सेशन रखा है। Good morning, ma'am. Good morning, Prapti. Boliye. Yes, so ma'am, I am a student engineering aspirant preparing for JEE 2025. So, like जैसे ma'am coaching classes देते हैं. So ma'am, like coaching classes is whole another stress area. Like if a teacher asks a question and then students are trying to answer it. Sometimes some students answer it like within seconds. They and like I'm just reading the question and students are able to answer it. And then it's just another I feel anger with myself, like I just read the question and other students are able to answer it. And that's like whole another stress level. So how do I cope up with it? Prapti, it's very understandable. Sorry, Dr. Neeraj, you want You to? are the right person to answer this. Yeah, no, it's very understandable. ये बहुत natural सी चीज है जब आप किसी और को देखते हो कि मुझसे थोड़ा बेहतर है उनका परफॉर्मेंस, तो वो कंपैरिजन में जाना एक नेचुरल सी बात हो सकती है। पर यही आपको अपने आप को ना रीट्रेन करना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या होता है ना, बचपन से हमें इसी उसमें लगा देते हैं कि देखो ये इतना अच्छा कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं, राइट? वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है एंड एवरीबडी डज दैट। स्कूल में भी यही होता है, तो वो हमारी इंटरनलाइज हो जाती है कहीं पर वो आवाज कि हम अपने आप को ही कहना शुरू कर देते हैं कि ये अच्छा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, राइट? पर आपको ये थोड़ा सा ना, आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्लाइटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव, राइट? ना 5 उंगलियां हैं, सारी एक जैसी तो नहीं है ना, right? और अगर एक जैसी होती तो you wouldn't be able to use your hand, right? So there is a purpose and a reason for everyone, and there is a uniqueness to it. There are things you might be good at, so it's important to identify what you are good at and to know that, okay, there are things that I am not good at. Another important tip, say, okay, instead of saying ki I'm not as fast as others, say I'm not as fast as others yet, right? So it gives you that वो same thought को आप थोड़ा positive में कर रहे हो कि आप ये कह रहे हो कि ठीक है अभी मैं उतना नहीं हूँ, पर with practice I will improve, right? With practice anything is possible, and with practice I will improve. So give yourself that space for improvement. And Devendra ji, please, if you can add. Yes. जी, इनकी थोड़ी वॉइस कट गई, तो मुझे जहां तक क्वेश्चन सुना है कि क्लास में कोई स्टूडेंट जल्दी आंसर दे देता है, मैं नहीं दे पाता हूँ। आई थिंक यही है। हाँ जी, कि उनको वो पढ़ ही रहे होते हैं तब तक वो आंसर भी कर देते हैं, तो वो थोड़ा हाँ जी। तो मैं इस पर बताना चाहूंगा कि बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, ठीक है? जब आप कोई भी चीज पढ़ते हैं तो इसके कई कारण है। एक ये हो सकता है कि जो क्वेश्चन टीचर ने पूछा है वो उसको अच्छे से आता होगा। जैसे हम लोग जीके पढ़ाते हैं तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं, रिपीटर्स होते हैं, 3-3 4-4 बार पढ़ लेते हैं। अब एक नया बच्चा आता है तो जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो वो खटाखट आंसर देता है। नया वाला स्टूडेंट्स होता है, मेरे को कुछ आता ही नहीं है। तो हमें कई बार क्लास में बताना पड़ता है कि यहाँ 15 जो स्टूडेंट बैठे हैं लेफ्ट साइड में, ये पुराने स्टूडेंट हैं, नए वाले हैं, उनको थोड़ा समय लगेगा। तो एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरी चीज, अगर कोई स्टूडेंट जल्दी आंसर देता है तो इसमें चिंता की बात नहीं है, क्योंकि क्लासरूम जो है वो आपका फाइनल एग्जाम नहीं है। हमें फाइनल एग्जाम तक जाना चाहिए। अगर वो 1 सेकंड के 90वें हिस्से में भी आंसर दे रहा है, जब आप कंपटीशन फाइट करोगे तो यू विल गेट मिनिमम 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन। जल्दी किस बात की है? जल्दी काम तो शैतान का होता है वैसे भी। तो रिलैक्स रहिए, क्लास की परफॉर्मेंस फाइनल रिजल्ट नहीं है। आप जब फाइनल रिजल्ट के बारे में सोचने लग जाएंगे तो वो इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है जो क्लास में मैंने 3 बार सिलेबस कर दिया, 8 बार कर दिया, 16 बार रिवीजन चल रहा है, बहुत बातें करके दूसरों को टेंशन में ला देते हैं। जब फाइनल रिजल्ट आता है तो देखते हैं कि वो कट ऑफ के आसपास भी नहीं है। तो कई लोग ऐसा माहौल भी क्रिएट करते हैं। सोशल मीडिया के दौर में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको। पिछले दिनों लास्ट ईयर जब RS का एग्जाम हुआ था तो फेसबुक पर एक पेज बना हुआ था, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा सही डाले जाते थे। एग्जाम के ठीक 3 दिन पहले किसी ने बदमाशी करके कुछ क्वेश्चन बनाए कि भाई इस एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, और सारे डाटा उसमें गलत डाल दिए। अब स्टूडेंट उसको पेज को रेगुलर देखते थे, उसमें लगभग 15-16 हजार बच्चे जुड़े हुए थे। उन्होंने देखा कि भाई ये जो डेटा है कितने गलत हैं,
पॉपुलेशन के, मेन सेंसस के डेटा, रिवर्स की लेंथ के डेटा सब गलत डाले हुए थे। तो किसी ने बदमाशी कर ली। अब स्टूडेंट 3 दिन पहले कंफ्यूज हो गए कि मैंने जो पढ़ा है वो सही है या ये सही है। तो हमने बड़ी मुश्किल से उस सिचुएशन पे कंट्रोल पाया। तो आज के दौर में ये सब देखना जरूरी है। तो अपने माइंड को एकदम कूल रखना है और फाइनल रिजल्ट के बारे में सोचना है कि मुझे वो प्राप्त करना है। क्लास की परफॉर्मेंस ठीक है, वो फाइनल नहीं है, वो एक प्रिपरेशन का पार्ट है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, एब्सोल्युटली। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को, जैसे उन्होंने बोला, रिपीटर्स होते हैं, तो क्वेश्चन के शक्ल देख के ही उन्हें पता चल हाँ जाता है क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या है। ठीक है ना। मैं खुद बहुत स्लो था स्टडीज में। मुझे पूरा एग्जाम कंप्लीट करना 2 घंटे में मुश्किल हो जाता था, 2 या 3 घंटा। ठीक है ना। लेकिन मेरा अच्छे मार्जिन से सिलेक्शन हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं, आप अपना सेल्फ असेसमेंट भी करें और क्लास में मतलब दूसरों से कंपटीशन करने के बजाय अपने लेवल को बढ़ाएं, अपने आप से कंपटीशन करें। और मे बी अगर आपको लगता है आपकी स्पीड कम है तो उस पर आधा घंटे 20 मिनट डेली एक्स्ट्रा वर्क करें। फास्ट रीडिंग की, फास्ट राइटिंग के लिए वर्क करें। तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ये बहुत कॉमन है, ऐसा हो सकता है। और जरूरी नहीं है कि जो बहुत फास्ट आंसर दे रहे हैं उन्हें सब, मतलब जो सामने दिख रहा है एकदम से आ जाता है उन्हें, पर जरूरी नहीं है कि वो हमेशा आगे ही रहे। I hope that answered your question, Prapti ji. Yes, And thank you. yeah. So anybody else? Or else we will wrap up. We are a bit over time, so I know yes, Suresh ji, Dr. Suresh, please. मैं एक्सपर्ट से पूछना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे सिर्फ मोबाइल से ही पढ़ना चाहते हैं, वो लैपटॉप पर या बुक से नहीं पढ़ना चाहते, उनके लिए क्या सुझाव है? बहुत सही क्वेश्चन पूछा है सुरेश जी। और हम देख रहे हैं अभी कोविड टाइम में ये बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें ना, ओवरऑल इतने लंबे समय तक मैंने भी स्टडी करी है, बाकी लोगों का भी है, कि जो हार्ड कॉपी बुक से या नोट से जो हमारा करेक्ट बनता है वो इतना मोबाइल गैजेट से उससे नहीं बनता। तो कहीं ना कहीं वो एक अपने नोट्स या एक हार्ड बुक से कनेक्टेड रहेंगे। और इनफैक्ट हर एग्जाम में यही होता है कि जो हमें हार्ड कॉपी डायरेक्ट बुक से नोट से रीडिंग ज्यादा रिटेन होती है एज कंपेयर टू विजुअली हम मोबाइल या उससे वीडियो से नरेट करते हैं। तो इसकी कोशिश करें हार्ड कॉपी से स्टडी करने की, नोट से स्टडी करने की। देवेंद्र जी, ये सही है मैं आपके हिसाब से? हाँ जी सर, बिल्कुल। एक्चुअली सर इसमें दो चीजें हैं। ऑनलाइन क्लासेस अभी शुरू हुई हैं आफ्टर कोविड पेंडेमिक। तो बचपन से स्टूडेंट ने टीचर को क्लास में सामने देखा है, एकदम उसका आई कांटेक्ट रहा है, उससे लगा कि टीचर मेरे सामने मौजूद है, क्वेश्चन पूछते ही उसको आंसर मिल गया। लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड होती हैं, आप क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। दूसरा मैं एक बात बताऊं जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फैक्ट्स जो होते हैं, लाइक जो तथ्य जिनको हम बोलते हैं, जैसे अरावली की हाइट कितनी है, आर्टिकल 44 क्या है, इंडिया यूएस के बीच में क्या डील हुई, तथ्य आंकड़े, ये हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। लेकिन जो चीजें एक्सप्लेन करने वाली होती हैं वो टीचर से डिस्कस करके ही आप कर सकते हैं। यूपीएससी के एग्जाम्स में हमारा अनुभव रहा है कि जिन स्टूडेंट ने ऑनलाइन क्लासेस ली उनका प्री और मेंस अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। तो कुछ ना कुछ नुकसान भी इसमें होता है। फैक्ट्स गेन आप कर सकते हैं, उसमें फायदा है। थैंक यू। Okay, we are out of time, so I'm going to have to call this session to an end. And thank you everybody who participated. Dr. Neeraj, Dr. Praveen, Devendra ji, and Hamari Yoga Acharya ji, I forgot your name. And, our psychiatrist friend, Dr. Jen. Very, very grateful to you all for taking your time out, and to all the parents, students, everybody who was here. Have hope, have courage. You're here to achieve so many things. And always remember that if it's not the result you wanted, maybe there's something more waiting out there. हाँ, मेघा जी एक क्वेश्चन और था मेरा कि आजकल बच्चों का है ना रूटीन, आपने कहा प्राणायाम बहुत अच्छा है, ये सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन आजकल बच्चे पढ़ते रोज रात को 2, 3, 4 बजे तक सोते हैं, फिर सुबह लेट उठते हैं, तो उनका मतलब लर्निंग टाइम ही मुझे तो लगता है बहुत कम हो गया है। तो
वो कैसे हम आदत को सुधार सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है मुझे ऐसा लगता है एज ए बायोलॉजिकल क्लॉक। बहुत जरूरी है शेड्यूलिंग, और जहां तक हमें उन्हें कन्विंस करना चाहिए कि एट मोस्ट मैक्सिमम 12 बजे 12 से 1 तक तो उन्हें समाप्त करना ही है कैसे भी, ये बहुत जरूरी है एट मोस्ट। वो भी एक अपर लिमिट है 12 उसके। और जब मॉर्निंग में अपने रिदम के हिसाब से जल्दी उठते हैं वो डेफिनेटली बेटर होगा, तो हमें उन्हें समझाना है। और किसी एक्सपर्ट से भी समझा सकते हैं, हर कोई यही सलाह देगा कि कम से कम एटलीस्ट एटमोस्ट मैक्सिमम लिमिट 12 उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। So especially if your child is a teenager, I'm guessing Rinki ji, they're at an age where they are expressing and exploring their own independence. So I would just recommend that, उनको बहुत rules and regulations आप देना चाहेंगे ना, तो वो नहीं हो पाएगा. So if you try and, win over with facts. Right, it's important to tell them why. It's not important क्योंकि मैंने कहा नहीं चलेगा इस एज में, right? Because I said so will no longer work. So it's important that you give them facts, and then if you see that they are not listening, then see where it is, what is the result. जैसे मैं नहीं सोई रात को तो कल मेरा दिन बहुत खराब जाएगा, मेरी एनर्जी लेवल होगी. उस वक्त पर just bring to their awareness, because you are not sleeping on time, this is happening. But then again, don't pounce and say, but you must. वो lecture mode में नहीं जाना है हमें, right? So just bring it to their awareness कि ये जो negative consequence है, this is result of this, but of course with facts. You have to be very factual at this age because their intellect is developing at this age, na? So they are trying to be independent of the parents. So you say left, they will say right. Many times, right? So you have to be friendly, you have to be humorous, very important to be humorous, be light. इस एज में वो discipline नहीं चलता है, that level of कि नहीं तुम्हें ऐसा ही करना है. So you have to use all your yukti, and the best way to really impress your kids is to influence their friends. जो उनके friends जैसा करेंगे ना, वो 100% वैसा करेंगे. तुम कहोगे नहीं सुनेंगे, तुम्हारे फ्रेंड्स कहेंगे तो perfect, right? I can see all the people with experience nodding, so I'm guessing I don't have kids, but this is what I have been told. So रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी क्या? एक बात और है कि अगर एग्जाम को बहुत कम टाइम बचा है तो बहुत ज्यादा रीशेड्यूलिंग पर फोकस ना करें, क्योंकि उसी में ही उसका स्ट्रेस बहुत बढ़ जाएगा. एग्जाम को टाइम है तो कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच लाने की कोशिश करें. एक बात की अवेयरनेस आप खुद रखें और उसे बार बार अवेयरनेस दिलाएं अपने बच्चे को कि आप देखो, आप थ्रू आउट द 24 आवर अपनी एनर्जी लेवल एक्चुअली मेंटेन कर पा रहे हो कि नहीं. अगर नहीं कर पा रहे हो तो किस वजह से नहीं कर पा रहे हो. और अगर वो शेड्यूलिंग के बाद कि थोड़ा लेट जग गए और वो अपना शेड्यूल चेंज नहीं कर पा रहे, बट स्टिल दे आर एबल टू मेंटेन एडिक्वेटली सो रहे हैं, अपनी एनर्जी लेवल मेंटेन कर पा रहे हैं थ्रू आउट द टाइम, अपनी हैप्पीनेस मेंटेन कर पा रहे हैं, तो बहुत स्लोली ग्रेजुअली आप कोशिश कर सकते हैं कि वो इम्प्रूव हो. ठीक है ना. द फैक्ट इज दैट कि उन्हें उनका एनर्जी लेवल, उनका हैप्पीनेस लेवल, उनकी हेल्थ, ये सब मेंटेन हो, और साथ में उन्हें इस बात की अवेयरनेस हो कि हम कितना मेंटेन कर पा रहे हैं विद ऑल शेड्यूल. नीरज जी, रिकॉर्डिंग के बारे में बताइए, अवेलेबल हो जाएगी? रिकॉर्डिंग में अपलोड करूंगा यूट्यूब पे एंड इट विल बी शेयर टू यू. थैंक यू. thank you so much everyone, we've really run out of देवेंद्र जी कुछ time, कहना so- चाह रहे हैं? हाँ जी सर. हाँ जी बोलिए. हाँ जी, मैम ने जो पूछा है मैं उसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा. बच्चे ज्यादातर सुबह 10-11 बजे तक सोकर उठते हैं, ठीक है, और ज्यादातर जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें एग्जाम का टाइम होता है सुबह 9 से 12 के बीच में. बहुत से बच्चे एग्जाम वाले दिन भी 10 बजे तक ही उठते हैं, पेपर उनका वहां चल रहा होता है. ये बहुत बड़ी सच्चाई है. उठ नहीं पाते एग्जाम वाले दिन, ये मैंने बहुत बार देखा हुआ है, क्योंकि वो आदत इतनी गंभीर हो जाती है, नहीं उठ पाते. वो कई बार भूल भी जाते हैं कि एग्जाम कब है, क्योंकि रात को 12 बजे बाद में डेट बदल जाती है. तो बहुत सारी चीजें हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए. Absolutely.
Very, very practical point. On that note, we will take your leave. Thank you, everyone, and all the best. And keep in touch. Dr. Neeraj, Dr. Praveen, Devendra ji, myself, if you need to reach out. However you found the link, just, you can reach out in that manner and we'll be happy to support you. Just know you're not alone. That's most important. Very या important. लाइफ में स्ट्रेस है तो बिना किसी रीजन के हेल्प करने के लिए भी लोग हैं, सही लोगों तक पहुंचना भी जरूरी है। And whatever knowledge you've gained, please share with everyone. Very important. Like Dr. Praveen ji said, logon ki help kariye. Bina kisi reason ke. That's the best way to be happy yourself. And thank you very much. Have a Thank good day. Thank you. Okay, thank you.